एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम चैप्टर 1 शॉर्ट में कवर करने वाले हैं। और ये आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशंस में भी आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द रिड्यूस सिलेबस फॉर योर सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। तो नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आ रहा है, सेंट्रल ऑटोनॉमस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रीफ में आ रहे हैं, देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, reflex action and how it differs from voluntary action, parts of a neuron, various parts of the external structure of the brain, its primary parts, medulla oblongata, cerebrum, cerebellum, thalamus, hypothalamus, and pons, and their functions, reference to the distribution of white and gray matter in brain and spinal cord, voluntary and involuntary actions with their meaning and example, and diagrammatic explanation of reflex arc showing the pathway from receptor to effector, a brief idea of the peripheral and autonomic nervous system in regulating body activities, and the differences between natural and acquired reflex. So let's start with the structure of neurons. So the neuron is basically divided into three parts: cell body, we have dendrites, and we have axon. So first let's start with cell body. The cell body is also called perikaryon or cyton. Perikaryon literally means surrounding the nucleus. So it is as the name suggests itself, so it is contained in a it contains a well defined nucleus, and it is surrounded by granular cytoplasm. Then it has all the cell organelles like other cells, but there is one cell organelle that is missing, that is the centrosome. Why is that? Because it has all the nerve cells have lost their ability to divide. So this can be asked that what is one cell organelle that is absent in nerve cells, and why so that is because nerve cells don't divide and centrosome is absent in them. Then dendrites. So dendrites, they are like tree like projections or hair like structures that are coming out of the cyton. You can look at this picture over here, and these are dendrites or dendron, as you can say. Dendron is this part, like the original, the original part, like the one main branch, and uske jo parts ho rahe, they are dendrites. Here it's coming back. So these are branch cytoplasmic projections of the cell body. They are like extensions of the cyton, and they conduct nerve impulses to the cyton. Now axon. It is a long process of the cell body, and it varies in size from a few millimeters to even more than 1 meter in length. In most neurons, the axon is surrounded by a white insulating sheath known as myelin sheath or medullary sheath, and it is also covered, that myelin sheath is also covered by an outermost thin sheet called neurulema. The myelin sheath shows gaps throughout the length, and these gaps, these irregularities, are called nodes of Ranvier. You can look at this picture over here. So they're not like one continuous thing like that. So you have breaks in between. So this, can you see this part? This is called node of Ranvier. Now, some axons may have side branches called collaterals, and the end portions of the axons have swollen ends like bulbs, and which store certain chemicals called neurotransmitters. Axon terminals are closely placed near the dendrites of another or more neurons, but they are not connected, and such gaps are called synaptic clefts. So the gap between the dendrons or the dendrites of one neuron and the axon terminal endings of another neuron, that is called synaptic clefts. Now some important terms. So when you're discussing nervous system, you should know these terms. So let's start with stimulus. So what is a stimulus? It is a sudden change of the external or internal environment that results in a change in an organism or any of its body parts. So it's a sudden change. If you touch a hot iron, so that is a change to your external environment, right? Your body temperature over there suddenly increases, or it's very hot there. Then what is the response? It is the change in an organism resulting due to the stimulus. So what will your body do? It will give a response. So what will happen? Your nerve cells over there, your cells over there in the body, the receptor part basically, they will say, oh, her finger has touched a very hot iron. So now this impulse will get carried to the central nervous system, which consists of the brain and spinal cord, and from there
a new message will be generated which says, oh, tell her to pull her hand back, just to remove her hand from the hot iron. And that is a response. And when you pull your muscle away, when you pull your hand away, that is a response to that stimulus. So it is the change in an organism resulting due to the stimulus. Now, what is an impulse? It is a wave of electric disturbance that sweeps over the nerve cell. Then what are receptors? The specialized epithelial cells which, on receiving the stimulus, set up waves of impulses towards the central nervous system. And what are effectors? They are muscles or glands which, on receiving the impulse from the brain or spinal cord, contract or they secrete substances. So effectors are basically the ones who show change, or the ones who carry the response, the ones who show the response that is happening. Then the transmission of nerve impulse. In the normal or in resting condition, the outer side of the nerve fiber carries a positive charge, like you can see here in the A diagram. So this is in resting position. So the outer portion carries positive charge and the inner one has negative charge. This is called polarized state. This polarization is due to more sodium ions outside the axon membrane. On stimulation, that is any mechanical, electric or chemical or heat, etc., the axon membrane at that spot becomes more permeable to sodium ions, which move inwards and cause loss of polarization. So when there is loss of polarization, this is called depolarization, and this depolarization state is only known as the excited region. So this part you can see it's changing, the reverse is happening here. So it was originally positive outside, it was in a polarized state, now it's becoming depolarized, and this region is called the excited region, and this one is the resting region. And now when again it's becoming how it was in the first diagram. So now this is called the recovery region or repolarization. So first, what does it happen? How does it happen? First, it's in polarized state, then it becomes in the depolarization, in the depolarized state or excited region, and again then you have the recovery region, which happens due to repolarization. Now, structure of a neuron. So we talked about this earlier, all the parts. So this is the cyton, this is nucleus, you have the dendron over here, and the further projections or the further hair-like structures that come out of the dendron or from the main branch that are called dendrites. And this is perikaryon or cyton, this is axon, this whole long thing that runs till the end, it is called axon. This is nucleus inside the neurulema, and this is myelin sheath, the insulating sheath, and these gaps in between are called node of Ranvier. And these are the axon endings which have bulb-like endings. They are quite thick. Now, what is synapse? Synapse is the point of contact between the terminal branches of the axon of a neuron with the dendrites of another neuron, separated by a fine gap. Here, the nerve impulse jumps into the next neuron, and this is a chemical process. So, as the impulse reaches the terminal ending of an axon, a chemical acetylcholine is released. This chemical sets a new impulse in the dendrites of the adjacent or the next neuron, and the chemical is soon broken down by an enzyme to make the synapse ready for the next transmission. So this can be asked that what is the chemical that is present. So it's acetylcholine, and when it reaches the terminal ending of an axon, so this chemical acetylcholine is released. And what is synapse? This can be asked. This is quite this is a very important question. So it's the point of contact. Then the types of neurons. So we have three types of neurons. We have sensory neuron, motor neuron, and association neuron. Sensory neurons, they convey the impulses from the receptor or from the sense organ to the main nervous system that consists of brain or spinal cord. Then motor neuron, they carry impulse from the main nervous system, that is from the brain or spinal cord to an effector, that is a muscle or gland. And what are association neurons? They are located in the brain and the spinal cord, which interconnect the sensory and motor neuron. So these were the three types of neurons. Now, what is a nerve? A nerve is a bundle of
nerve fibers, that are axons, of separate neurons enclosed in a tubular sheath. Types of nerves, again we have three types of nerves. Like we had three types of neurons, we have three types of nerves. Sensory nerves, they contain only sensory fibers, bringing impulses from the receptor, that is from the sensory organs, to the brain or the spinal cord. For example, okay, examples can be asked, so they're quite important. First example for sensory nerves, we have optic nerve that arises from the eye and it ends in the brain. Then motor nerves, they contain only motor fibers and they carry impulses from the brain or the spinal cord to effector organs, which are muscles or glands, to bring them into action. Example, a nerve arising from the brain and supplying the muscles of the eyeball for rotating the eye. Now mixed nerves, they contain both sensory and motor fibers, and example are spinal nerve. What is a ganglia? So ganglia are the aggregates of the nerve cell or the cell body from which the nerve fibers may arise or enter into. So ganglia is, again, it's an important question, and it was asked as in MCQ, I think, in the specimen paper, that what is ganglia. So they are the aggregates of the nerve cell or the cell body from which nerve fibers may arise or enter into. Then let's have a quick look at the divisions of the nervous system. So how nervous system has two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, and the peripheral nervous system is again divided into two parts. It's autonomic. Here it's autonomic nervous system and somatic nervous system. Now autonomic nervous system is divided into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So we'll be focusing more on the central nervous system and its parts, and autonomic nervous system and its parts. Now coming to the brain. So brain is a part of the central nervous system, and the brain is a very delicate organ which is protected inside of a brain box, or better, you can say in better language, cranium or of the skull. Then the covering of the brain, the covering or meninges. The brain is protected by three membranous coverings called meninges, and which continue backwards on the spinal cord. So first we have dura mater, then second is arachnoid, and then we have pia mater. So dura mater is the outermost tough fibrous membrane. The outermost is dura mater. Then arachnoid is the thin delicate middle layer giving a web-like cushion. And we have the pia mater, the innermost and highly vascular membrane, and it's richly supplied with blood. Meningitis, what is meningitis? This can be asked. It is the inflammation of the meninges. So the meninges, the three coverings basically, if that there is an inflammation, if they become swollen, so then that results to meningitis. The space between the covering membranes is filled with a watery liquid called cerebrospinal fluid. Very important, very, very important. This can be asked again, which acts like a cushion to protect the brain from shocks. And its function is also important. That what does the cerebrospinal fluid help in? So it acts like a cushion and it protects the brain from shocks. The same fluid also fills the central spaces of the brain and the central canal of the spinal cord. Parts of the brain. So we have three main parts of the brain: cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Starting with cerebrum. So cerebrum is the largest portion of the brain. It is divided into two, that is right and left halves of the called cerebral hemispheres, and their outer surface is highly convoluted with ridges and grooves. Each cerebral hemisphere is hollow internally, and the walls have two regions, an outer cortex and an inner medulla. Now this is the brain diagram, and this can be asked to label. And so or this can be asked, I think better this one is more clearer, and this one can be asked as well. So please have a good look at both of them and practice making them and also labeling them, labeling more importantly.
The outer portion or the cortex of the cerebrum contains cell bodies of the neurons, and being grayish in color, it's called gray matter. So you had a look at the reduced syllabus in the starting of the video, so it clearly mentioned the distribution of gray matter and white matter. So please remember that gray matter, it is in the outer portion or the cortex part of the cerebrum in the brain, and it contains what? Cell bodies of neurons. So the cell bodies of neurons are grayish in color, so that is why it is called the gray matter. Please remember, they can also ask you why is it called the gray matter, because it's grayish in color. The cell bodies of the neurons are grayish in color, that is why. It is the layer of gray matter which is folded to form the convolutions. The folds are called gyri and the grooves are called sulci, the creases. So you have grooves in your brain, so basically those folds and grooves are called gyri and sulci. Then such a system increases surface area to accommodate more nerve cells. So they can also ask you that why are folds and grooves present in your brain. That is because to accommodate more nerve cells. So if there are more nerve cells, you'll have like more memory, and you can have a lot of things in your brain. I mean, it'll provide a greater surface for storing things. It is believed that the higher number of convolutions in the human brain is due to the larger number of brain or nerve cells and hence the greater intelligence. So जितने ज़्यादा आपके ब्रेन में ग्रूव्स हैं, जितने ज़्यादा आपके ब्रेन में फोल्ड्स हैं, उतना ज़्यादा मानते हैं, जितने ज़्यादा है मतलब उतना आपका बड़ा ह्यूमन ब्रेन, अगर बड़ा हो आपका ब्रेन तो उतने ज़्यादा नर्व सेल्स है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है इंसान को. देन इनर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर. सो बाहर में क्या था? ग्रे मैटर था. इनर में क्या है? वाइट मैटर. वाइट मैटर में क्या है? विच मेनली कंटेन्स द एक्सॉन ऑफ द नर्व फाइबर्स ऑफ द न्यूरॉन्स. तो बाहर में क्या था? इट कंटेन्स द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स. ठीक है, बाहर में ग्रे मैटर में था सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स, एंड वाइट मैटर में क्या है? इनर पोर्शन में क्या है? द एक्सॉन और द नर्व फाइबर्स ऑफ द न्यूरॉन्स. देन corpus callosum or the heart, literally meaning heart body, is a sheet of fibers connecting the two cerebral hemispheres. तो हमने दो हेमिस्फीयर्स की बात करी थी कि हमारा सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो कॉर्पस कैलोसम एक ऐसी शीट है, शीट ऑफ फाइबर्स बेसिकली, एंड ये क्या करती है? दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करती है. इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू द अदर हेमिस्फीयर. ये याद रखना. फंक्शन क्या होता है ये तो काफ़ी पूछा जा सकता है. फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस एंड लोकेशंस. तो ये दो चीज़ पे काफ़ी फोकस करना है कल के एग्जाम पे. तो या देन द हाईली डेवलप्ड कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर enables us to think, reason out, invent, plan and memorize. Overall, the cerebrum is the seat of intelligence, consciousness and willpower. तो ये काफ़ी important है. सेरिब्रम का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है कि आपको सोचने में मदद करे, चीज़ों को रीज़न आउट करने में मदद करे. आपकी इंटेलिजेंस की सीट होती है एक तरह से. कॉन्शियसनेस और विल पावर ये सब कहाँ लाया करता है? सेरिब्रम के अंदर. एंड इट कंट्रोल्स ऑल वॉलेंटरी एक्शंस. जो आप सोच समझ कर रहे हो या जो आपके कंट्रोल में जो एक्शंस हैं वो सब सेरिब्रम के अंदर आते हैं. सेरिब्रम सारे वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. एंड ये अगेन ये आपका ब्रेन का पार्ट है, तो ये सब दोनों आप अच्छे से डायग्राम देख लेना. Now, what is generally called the subconscious or unconscious mind is also located in the cerebrum. Many past experiences are covered up by more recent impressions which dominate conscious activity. In dreams or when hypnotized, the skill and skillfully questioned, past experiences may be recalled. तो past experiences जो memory जो है basically कहाँ होती है? आपके cerebrum के अंदर होती है, सारी चीज़ें जो store होती है. नाउ सेरिबेलम. तो सेरिबेलम का मतलब लिटरली क्या होता है? लिटिल ब्रेन. एंड सेरिबेलम इज़ अ मच स्मॉलर एरिया ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ लोकेटेड जस्ट एट द बेस अंडर द लार्ज सेरिब्रम. तो अगर लोकेशन पूछी जाए सेरिबेलम की तो क्या लिखोगे कि इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन जस्ट एट द बेस ऑफ जस्ट एट द बेस एंड अंडर द लार्ज सेरिब्रम. नाउ इट हैज़ नो कॉन्विलेशंस, मतलब इसके अंदर कोई फोल्ड्स या कोई ग्रूव्स प्रेजेंट नहीं है. बट इट हैज़ अ नंबर ऑफ फरोज. तो फरोज क्या होता है? लाइक आपने अगर रैबिट का होल देखा हो
तो कैसा एक छोटा सा होल होता है जिसके अंदर वो रैबिट घुस जाता है, तो लाइक दैट इट इज़ like there are holes, sort of holes present, and it is hollow, and it also has an outer cortex made of grey matter. तो हमने जैसे देखा था सेरिब्रम में क्या है कि आउटर ग्रे मैटर है और इनर वाइट मैटर हमने देखा था, तो उसी तरह से यहाँ पर सेरिबेलम के अंदर भी यू हैव एन आउटर कॉर्टेक्स मेड ऑफ ग्रे मैटर एंड सेंट्रली इट हैज़ वाइट मैटर in which in a median section and it appears like a branching tree. आप यहाँ पे देख सकते हो. Then the main function of the cerebellum is to maintain balance of the body and coordinate muscular activity. तो हमने cerebrum में क्या देखा था कि it is the seat of intelligence, consciousness and यहाँ पे क्या था and रीजनिंग एंड विल पावर, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर. वैसे ही यहाँ पे सेरिबेलम क्या करता है, इट हेल्प्स मेंटेन द बॉडी बैलेंस एंड coordination of the muscular activities. The impulse for performing a muscular act originates in the cerebrum and not in the cerebellum. आप ये बात याद रखना, हमने सेरिब्रम में यहाँ पढ़ा हमने कि जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, सेरिब्रम से आते हैं. तो जो इम्पल्स जो होती है, जो मैसेज होता है टू परफॉर्म अ मस्कुलर एक्टिविटी, वो कहाँ ओरिजिनेट होता है, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में नहीं. दो सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस. स्टिल रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टैंड अप एंड वॉक, द इम्पल्स फॉर दिस activity, it arises in the cerebrum, that is the conscious part. The act of walking involves coordinated working of many muscles, and this proper coordination and timing of their contractions and relaxation is the responsibility of the cerebellum. तो impulse यानी कि message cerebrum में होगा, but बाकी जो muscular coordination है वो cerebellum उसके लिए responsible होगा. नाउ ये क्वेश्चन आ जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन है कि इन अल्कोहलिक पर्सन व्हेन ड्रंक जनरली वॉक्स क्लमजिली, व्हाई. तो इसका रीज़न क्या है, दिस सेरिबेलम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इज़ अनेबल टू कोऑर्डिनेट मस्कुलर मूवमेंट्स प्रॉपर्ली. तो दिस इज़ द रीज़न. तो जब सेरिबेलम एक तरह से सेरिबेलम अफेक्ट होता है और अल्कोहल से, तो अगर सेरिबेलम जो कि आपके मसल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो अफेक्टेड हो जाएगा तो क्या होगा, उससे आप क्लमजीली वॉक करोगे, ढंग से मसल्स कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, तो ऐसे अजीब से वॉक करोगे. नाउ मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टेम टाइप का पोर्शन है ये वाला, दिस इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा and it is roughly triangular in shape and it is continued behind the spinal cord. Its function is to control the activities of the internal organs. एंड बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, आपके सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है बॉडी के, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये वाले जो सिस्टम होते हैं बॉडी के, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब आपका जो इनवॉलेंट्री चीज़ें हैं वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. सो कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ये सब क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का. द बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड मैनी अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस. और अगर आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा पे इंजरी हो जाए, यहाँ पे अगर लग जाए, तो बेसिकली दिस रिजल्ट्स इन इमीडिएट डेथ ऑफ द पर्सन. नाउ प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन, हमने पार्ट्स ऑफ द ब्रेन देखे, अभी हम रीजन्स ऑफ द ब्रेन देखे तो हमें एक फोर ब्रेन में डिवाइडेड है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, मतलब सामने का, बीच का, पीछे का, ऐसे बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में. इसमें हमारा ब्रेन डिवाइडेड है, वो हमारे ब्रेन के पार्ट्स थे, ये रीजन है. अगर देखने में देखो तो कैसा लगता है ब्रेन. तो फोर ब्रेन में क्या क्या हो जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम आता है एंड डायंसेफेलॉन पार्ट जो आता है आपका. मिड ब्रेन के अंदर ये आपके ट्यूब्यूलर पार्ट आ जाता है, और हाइंड ब्रेन जो कि पीछे का पार्ट है उसके अंदर सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है. तो सेरिब्रम जो कि आपके दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, इट इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर एंड वॉलंटरी एक्शंस. एंड डायंसेफेलॉन क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, थैलेमस प्रेजेंट है. इट रिलेज पेन एंड प्रेशर इम्पल्सेस टू सेरिब्रम. दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने अभी रिड्यूस सिलेबस स्टार्टिंग में जो देखा उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो पॉन्स है, जो आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ना है. तो डायंसेफेलॉन पार्ट जो कि आपके फोर ब्रेन के अंदर है, इसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो पार्ट में ये है. एंड थैलेमस क्या करता है, इट रिलेज
पेन एंड प्रेशर इम्पल्सेस टू द सेरिब्रम. एंड हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड आपने अगर मेरा अभी वीडियो नहीं देखा है एंडोक्रीन सिस्टम पे तो उसको आप जाके देख सकते हो. आई हैव कवर्ड इट इन 30 minutes फॉर योर सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन, सो इट्स ऑन माई चैनल, यू कैन गो चेक इट आउट. देन talking about the midbrain, बीच वाला portion, it is a small tubular part and reflexes involving eyes and ears सारे midbrain part में कंट्रोल होता है. हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आ जाता है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिबेलम क्या करता है, आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, आपकी बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड देयर इज़ वन मोर ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंस, फॉर योर बॉडी बैलेंस. एंड व्हाट इज़ दैट पार्ट, इट इज़ द ईयर. सेंस ऑर्गन्स का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो. पॉन्स इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिबेलम. ये लोकेशन आ सकती है तो याद रखना इसको. पॉन्स कहाँ है, हाइंड ब्रेन के अंदर है, सेरिबेलम के नीचे, सेंटर ब्रेन के जस्ट बीच में. and it carries impulses from one hemisphere of the cerebellum to the other hemisphere, and it also coordinates muscular movements on both sides of the body. both sides of the body मतलब कि जो आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना बॉडी, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, आपका राइट हेमिस्फीयर, तो इन दोनों के बीच में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए पॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल है. मेडुला ऑब्लोंगेटा लाई करता है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनल ऑर्गन. सारे आपके जो इनवॉलंटरी एक्शंस है बॉडी के सारे यहाँ पे कंट्रोल होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें, डाइजेशन, ये सब. नाउ स्पाइनल कॉर्ड. तो ये हमने ब्रेन की बात करी थी, ब्रेन के पार्ट्स की बात करी, उसके रीजन्स की बात करी. नाउ कमिंग टू स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन down almost the whole length of the backbone at the end of the second lumbar vertebra and lies within the neural canal of the vertebrae. मतलब कि आपका ब्रेन का जो लास्ट पोर्शन जो आप देखो तो वो स्टेम टाइप का मेड्यूला है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है मेड्यूला. एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से शुरू होकर स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से शुरू होती है और आपके बैकबोन के एंड तक ये जाती है पूरी होल लेंथ, एंड इट to end at the second lumbar vertebra and it lies within the neural canal of the vertebrae. Or then the internal structure of the here the arrangement of white and grey matter is reversed from that in the brain. तो आपने क्या देखा था, ब्रेन के अंदर क्या है, बाहर का जो पार्ट है उसमें ग्रे है और अंदर का पार्ट में वाइट है. बट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उल्टा हो जाता है. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है कि ग्रे मैटर कंटेनिंग द सेल बॉडीज ऑफ द मोटर एंड इफरेंट एंड एसोसिएशन न्यूरॉन, इट लाइज ऑन द इनर साइड. तो ग्रे मैटर अंदर है और वाइट मैटर है वो बाहर आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. द वाइट मैटर कंटेन्स एक्सॉन्स रनिंग लॉन्गिट्यूडनली टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड इवन क्रॉसिंग वन साइड टू द अदर. देयर इज स्मॉल सेंट्रल कनाल इन द सेंटर विच रन्स द इंटायर लेंथ एंड इट इज continuous with the cavities of the brain. It is also filled with cerebrospinal fluid which acts as a shock-proof cushion and forms the medium for exchange of food materials, waste products and respiratory gases with the neurons. तो हमने अभी ब्रेन के अंदर देखा था कि ब्रेन की जो थ्री कवरिंग्स होती है, मेनिंजेस होती है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उनके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि ब्रेन को शॉक से बचाता है और एक कुशन की एक लेयर की तरह लेयर प्रूफिंग, कुशन प्रूफिंग की तरह काम करता है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है आपके यहाँ पे भी कंटेंड है इन द सेंट्रल कनाल. और ये जो सारी बीच में जो जगह होती है, जो भी जगह होती है बीच में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे भी कंटेंड है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. तो अगेन इसमें क्या याद रखने की चीज़ें हैं, जो ग्रे मैटर है आपका ब्रेन के अंदर बाहर था बट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिवर्स हो जाता है, अंदर हो जाता है. तो किसी भी एक का याद कर लो, ब्रेन का याद कर लो, ब्रेन के अंदर बाहर प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ यहाँ देयर इज़ अ स्मॉल सेंट्रल कनाल, एक सेंट्रल कनाल प्रेजेंट है कहाँ पर, बीच में. और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, इट रन्स द इंटायर लेंथ एंड इट इज़ कंटिन्यूस विद द कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन. ठीक है. और क्या होता है बेसिकली, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, डज नॉट ओनली shock proof, it is not only a shock proof cushion, and it just also helps, it is also medium for the exchange of food materials. आपके स्पाइनल कॉर्ड के भी सेल्स हैं, उनको भी फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, उनके भी वेस्ट जो जनरेट होते हैं उनको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है. तो ये सारी चीज़ें, ये सब न्यूरॉन्स, ये सब जो एक्सचेंज होता है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू होता है.
Externally, the spinal cord is covered by the same three membranous dura mater, आर्किनॉइड एंड पिया मैटर. ये जो हमने ब्रेन में देखा था सेम वही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी है इन कंटिन्यूएशन विद दोज ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन से शुरू होता है, मेड्यूला तक जा रहा है, और मेड्यूला के नीचे भी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका भी पूरा वो कवर करता है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? द स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विद द फॉलोइंग थ्री फंक्शंस. फर्स्टली, रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक. जो भी आपके नेक के नीचे जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज कंसर्न्ड विद योर spinal cord. Then second, it conducts sensory impulses from the skin and the muscle to the brain. And third is that it conducts motor responses from the brain to the muscle of the trunk or trunk and limbs. Now peripheral nervous system. तो हमने अभी यहाँ पे एक थोड़े देर पहले यहाँ पे आई थिंक एक यहाँ पे देखा था, या ये ऑटोमेटिक नहीं है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना. इट्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और इसके अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने बात करी. इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने दोनों को डिस्कस कर लिया, दोनों के फंक्शंस, पार्ट्स सब डिस्कस कर लिया. नाउ कमिंग टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सो नाउ वील बी लुकिंग एट दैट. सो हियर इट इज़ peripheral nervous system. Peripheral nervous system, or PNS in short form, includes the nerves which carry impulses to and from the central nervous system. It is divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. Now somatic nervous system की अगर बात करें तो it consists of two sets of nerves, and इनका जो नंबर है ना वो पूछा गया था आपके स्पेसिमेन पेपर के MCQ में. तो आप प्लीज़ इनका नंबर जो इनके पेयर्स हैं उनको याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्टली क्रेनियल नर्व्स एंड सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आगे किस में डिवाइडेड है? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के अंदर. तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? क्रेनियल जो द वर्ड इज एसोसिएटेड विद ब्रेन. तो ब्रेन बॉक्स जो है, क्रेनियल नर्व्स मतलब ब्रेन से इमर्ज होती है, ब्रेन से अराइज होती है, एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. कैसे याद रखोगे? देखो C एंड S. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो C पहले आता है और S बाद में आता है, राइट? तो C छोटा हो गया, मतलब जो 12 पेयर्स, जो छोटा नंबर है वो हमने C को पकड़ा दिया जो कि पहले आता है. मेरे पास ऐसे बहुत वियर्ड तरीके हैं मैं चीज़ों को याद करने के, बट या आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू. But I know they're very weird, but yeah, please keep up with me. And cranial nerves आपके brain से emerge होता है, उनके 12 pairs होते हैं. Now some of which are, they are sensory like olfactory related to nose, for nose, and optic for eyes, and auditory for ears. They are motor nerves like the ones going to the eye muscles and etc. And there are mixed nerves like those going to and coming from the face and tongue. तो ये पूछा जा सकता है कि cranial nerves के अंदर जो 12 pairs हैं, what are those nerves consisting of? तो इसके अंदर सारी हैं बेसिकली. सेंसरी नर्व्स भी हैं, मोटर नर्व्स भी हैं, और मिक्स नर्व्स भी हैं. उनके एग्जाम्पल भी देख सकते हो. सेंसरी में जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी नर्व्स हो गई. देन मोटर नर्व्स कैसे हो गई, जो कि आई मसल्स में जा रही है. देन मिक्स नर्व्स क्या हो गई? मिक्स नर्व्स जिसमें दोनों हो, सेंसरी फाइबर्स भी हो, मोटर फाइबर्स भी हो. तो मिक्स नर्व्स में क्या हो जाती है? दैट आर गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम द फेस एंड टंग. देन स्पाइनल नर्व्स, दे इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एज द नेम सजेस्ट. तो दोनों से पता चल रहा है कि दोनों इमर्ज कहाँ से हो रही है, दोनों के नाम में ही लिखा हुआ है एक तरह से. ना स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं. तो 8 pairs are in the neck region, 12 pairs are in the thorax region, 5 pairs in the lumbar region, and 5 pairs in the sacral, and 1 pair in the coccygeal region. Now इसको याद रख लेना, मैंने याद करने का तरीका बता ही दिया है. क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स लिखना ज़रूरी है. स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती है, और कितने पेयर्स? 31 पेयर्स. नंबर थोड़ा याद रख लेना, 12 and 31. Now, a typical spinal nerve originates from the spinal cord by means of two roots, a dorsal root and a ventral root. तो जो एक स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और दो रास्तों से हो सकती है, 2 रूट से हो सकती है, या तो डॉर्सल से या वेंट्रल से. तो each dorsal root has an ovoid dorsal ganglion. Every spinal nerve is a mixed nerve having both sensory and motor fibers. So you should know this. ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो mixed nerves थी उसके अंदर हमने क्या एग्जाम्पल देखा था कि जो nerves in the spinal cord जो होती है, they have both sensory and motor fibers, so they are mixed nerves. So each and every nerve in your spinal cord
which arises from your spinal cord. Each and every spinal nerve is a mixed nerve. At the junction of the two roots, the sensory and the motor fibers separate out. The sensory fibers continue in the dorsal root and the motor fibers into the ventral root. तो ये याद रखना, सेंसरी कहाँ जाती है, डोर्सल में जाती है, डोर्सल रूट में, और मोटर कहाँ जाती है, वेंट्रल रूट में. तो SD and FV, SD, FV. Both the roots enter the grey matter of the spinal cord. और ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहाँ होता है, इनसाइड, ब्रेन के अंदर बाहर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, अंडर होता है. एंड एंड इन द कोरिस्पॉन्डिंग डोर्सल एंड वेंट्रल प्रोजेक्शन हॉर्न्स ऑफ द ग्रे मैटर. तो अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हमने कौन सा देखा था, सोमैटिक, ये है ऑटोनॉमिक. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS consists of a pair of chains of nerves and ganglia on either side of the backbone, and this system controls the involuntary actions of the internal organs. तो आपके internal organs के अंदर जो involuntary action हो रहा है, जैसे आपका digestion हो गया, तो ये एक involuntary action है जो कि आपके internal organs perform कर रहे हैं, and ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे. This is not something that you can control, right? Now there are two parts of the autonomic nervous system. First is sympathetic nervous system, and second is parasympathetic nervous system. The nerves of sympathetic nervous system arise from the spinal cord and between the neck and the waist region. And parasympathetic system is located at two places. One anteriorly in the head and neck, and the other posteriorly in the sacral region. These two parts are general and they are opposite to each other in action. Now the sympathetic nervous system is stimulated by a hormone that is called adrenaline, which is secreted by adrenal glands that are located on top of each kidney. Again, I would recommend you to go watch my video on endocrine system that is on my channel. Now remember, sympathetic nervous system prepares the body for violent action against abnormal conditions. It's like a flight fight situation. तो उसके अंदर हमारा sympathetic nervous system हमारी body को prepare करता है. And the parasympathetic nervous system is more concerned with re-establishing the normal conditions after the violent act is over. तो मतलब आपने एक बार लड़ाई या जो भी आप भाग गए, जो भी जगह थी, मान लो आपके पीछे एक कुत्ता पड़ गया, डॉग आपके पीछे भागने लग गया, तो उसके अंदर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपको भागने के लिए तैयार करेगा. और जब आप घर पहुंच गए, आप अपने रूम में आ गए, तो आपको बॉडी को वापस रिलैक्स स्टेट में लाने के लिए कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो दैट विल बी मोर कंसर्न विद री एस्टैब्लिशिंग द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द बॉडी. मतलब हार्ट बीट वापस नॉर्मल कर देगा, माइंड को काम करेगा, वो टाइप का. Then emotions and autonomic nervous system. So autonomic nervous system is strongly influenced by emotions such as grief, anger, fear and sexual stimulation, etc. High blood pressure, stomach ulcers and some other troubles may arise due to long continued emotional stress. अगर आप ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस के अंदर हो तो आपके क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर. हाई ब्लड प्रेशर रहने लगेगा, आपके स्टमक में अल्सर्स होने लग जाएंगे, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं अगर आपके लॉन्ग कंटिन्यूड इमोशनल स्ट्रेस रहा तो ये आपको याद रखना है दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ द नर्वस सिस्टम दैट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इमोशंस. Now effects of the two parts of the autonomic nervous system. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या होता है ये देखते हैं. जैसे आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो क्या करता है, आपको फाइट फ्लाइट सिचुएशन में इसमें आपके काम में आता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है. तो लेट्स सी, तो जैसे ऑर्गन है, हार्ट है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देगा, एक्सेलरेट कर देगा. बट पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, इट रिटार्ड्स द हार्ट बीट, वापस बैक टू नॉर्मल लेकर आएगा. देन ब्लड वेसल्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं एक्सेप्ट द कोरोनरी वेसल्स विच आर डायलेटेड. तो बाकी सारी आपकी बॉडी के अंदर जो भी सारी ब्लड वेसल्स है सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, सारी मतलब सुकड़ जाएंगी एक तरह से. एंड जो आपकी कोरोनरी वेसल्स हैं सिर्फ वो आपकी डायलेटेड रहेंगी. एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, इट डायलेट्स ऑल ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट द कोरोनरी वेसल्स विच आर कंस्ट्रिक्टेड. तो इसके अंदर क्या है ना, बेसिकली कुछ नहीं है. अच्छा, कोरोनरी वेसल्स कौन सी होती है अगर आपको नहीं पता तो मतलब ये हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी वेसल्स वो होती है, कोरोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वीडियो है, वो भी जाके देख सकते हो. तो कोरोनरी वेसल्स आपको जब आपकी हार्ट बीट बढ़ानी है
तो उस समय क्या होगा, ज़्यादा जगह चाहिए होगी ब्लड को फ्लो करने के लिए, तो इसलिए आपकी कोरोनरी वेसल्स भर जाती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जब आपकी बॉडी फ्लाइट फाइट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करी है। बट नॉर्मली आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी सारी ब्लड वेसल्स को डायलेटेड रखता है, यानी सबको खोल के रखता है, एक्सेप्ट द कोरोनरी वेसल्स विच आर कंस्ट्रिक्टेड इन नॉर्मल कंडीशन। नाउ लंग्स में क्या होता है, सिंपैथेटिक में क्या हो जाता है, डायलेट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, मतलब कि जो भी आपके ट्रैकिया से जो ट्रैकिया के आगे जो ब्रांचेस निकल रही है जिनको हम ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस निकल रही है ब्रोंक्यूल्स, जो आपके लंग्स में अंदर जाती है और सांस लेने में मदद करती है। तो उस समय क्या होता है, जब आप ना एक ये सिचुएशन को इमेजिन करो तो आप इससे आप इजीली रिलेट कर पाओगे। अगर आप भाग रहे हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप सांस ज़्यादा हाफोगे, सांस अंदर लोगे बाहर लोगे, ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमें ज़्यादा अपने एयर लंग्स में पहुंचानी होगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका डायलेट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, तो कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को, नॉर्मल कंडीशन में लेकर आ जाता है। देन इंटेस्टाइन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिस्टालिसिस इज डिक्रीज्ड, बट इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पेरिस्टालिसिस इज इंक्रीज्ड। देन यूरिनरी ब्लैडर में अगर देखा जाए तो स्पिंटर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मसल रिलैक्स हो जाती है, एंड स्फिंक्टर मसल्स आपके हैं ना, एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाता है, स्पिंटर रिलैक्सेशन हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और फीलिंग टू यूरिनेट, मतलब कि जब आप भाग रहे होते हो, जब आप पीछे आपके डॉग पड़ा है तो आप भाग रहे हो आगे, तो तब उस समय आपका फीलिंग जो आपको यूरिनेट करने की फीलिंग है उसको दबा लेगा, मतलब स्पिंटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी स्पिंटर मसल्स। बट पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल में आपकी स्पिंटर मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी, मतलब आपको एक यूरिनेशन की फीलिंग आएगी, मतलब यूरिनेट करने की एक इच्छा होएगी, मतलब जाने की। देन प्यूपिल ऑफ द आई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डायलेट कर जाएगी, बट पैरासिम्पैथेटिक के अंदर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। देन सलाइवरी ग्लैंड्स, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, इट इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ सलाइवा इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, मतलब आपका सलाइवा कम निकलेगा। बट पैरासिम्पैथेटिक मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टिमुलेट्स सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, मतलब ज़्यादा निकलेगा, या नॉर्मल जितना निकलता है उतना निकलेगा। देन लैक्रीमल या टीयर ग्लैंड्स, इट स्टिमुलेट्स सेक्रीशन, मतलब कि आपके टीयर्स निकल सकते हैं, आपके पीछे डॉग पड़ा है तो आप रोते रोते भी भाग सकते हो, बट नॉर्मल कंडीशंस में इट इनहिबिट्स सेक्रीशन, मतलब कि नहीं निकलेगा, नॉर्मल उसमें नहीं निकलते। देन इरेक्टर और इरेक्टर पाइलाई और हेयर मसल्स ऑफ द स्किन, तो आपके जो बाल है ना स्किन पे, तो जैसे आपने गूज बम्स सुना होगा, तो आपको डॉग को देखते ही गूज बम्स आ गए, आपको नहीं तो गोस्ट को देखते ही गूज बम्स आ गए, राइट, कोई चीज़ डरावनी देख ली, तो इसके अंदर क्या होगा, बाल आपके खड़े हो जाएंगे, तो क्या होगा इसके अंदर स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि आपके बाल इसमें खड़े हो जाते हैं, बट नॉर्मली आपके पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इनको रिलैक्स कर देता है, नॉर्मल फ्लैटन रहते हैं। तो इरेक्टर या इरेक्टर पाइलाई या पाइलाई मसल्स ऑफ द स्किन क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर दे स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन। एंड बॉडी एज अ होल की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक सिस्टम उसको एक्शन के लिए प्रिपेयर करती है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए प्रिपेयर करती है। तो दीज वर द डिफरेंसेस एंड द इफेक्ट्स ऑन द डिफरेंट ऑर्गन एंड द बॉडी एज अ होल, दोनों सिस्टम क्या क्या करते हैं हमारे बॉडी में। नाउ ये आप अगेन टू समराइज एवरीथिंग दैट यू लर्न राइट नाउ, तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्रम आपके इट इज़ अ सीट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, रीजनिंग एक्सेट्रा, and cerebellum it maintains the body balance, and medulla oblongata controls all the involuntary actions of the body. Spinal cord क्या करता है, it controls all the reflex action and it conveys impulses. अब peripheral nervous system is divided into 2 parts, somatic nervous system and autonomic nervous system. तो somatic nervous system 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनकी क्रेनियल नर्व्स होती है और स्पाइनल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स, याद करने का तरीका बता दिया, और स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स हैं, 31 पेयर्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया क्लोज टू और एम्बेडेड इन दी ऑर्गन्स, एंड इसके अंदर 2 टाइप के नर्वस सिस्टम और आ जाते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती है दे आर बिटवीन द नेक एंड वेस्ट, वेराज इधर क्या होती है, नर्व्स आर अबव द नेक एंड बिलो द सैक्रल। एंड इसके अंदर क्या है, स्टिम्युलेटरी, मतलब आपको आपकी बॉडी को एक
फाइट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती है, बट पैरासिम्पथेटिक कामिंग नेचर में होती है, आपको बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए प्रिपेयर करती है. सिंपथेटिक की क्या फीचर्स हैं, आपकी हार्ट बीट एक्सेलरेट हो जाएगी, प्यूपल आपका डायलेट हो जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपके शुगर रिलीज़ होने लगेगी लिवर से. और कामिंग, अगर आप कामिंग नेचर बात करो सिंपथेटिक का, तो उसके क्या है, नॉर्मल बॉडी कंडीशंस को रिस्टोर करेगा. जो भी नॉर्मल कंडीशंस होती है सारी बॉडी के, जो जैसे होता है नॉर्मल हार्ट बीट और ये सब, उसको वापस ये लोग रिस्टोर कर दे, पैरासिम्पथेटिक रिस्टोर करेगा. नाउ रिफ्लेक्सेस. तो रिफ्लेक्सेस आर बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन. तो आपने सुना होगा कोई जैसे मैं बहुत करती हूँ, तो मैंने अपने भाई को ज़ोर से अगर मार दिया तो मैं क्या बोलती हूँ, इट वाज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे बोल देती हूँ मैं उसको. तो उसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सेस आर, दे आर इनवॉलेंट्री एक्शंस, मतलब आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, आप नहीं कर रहे हो इनको कंट्रोल. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस विच अकर इन आर बॉडी. फर्स्ट इज़ वॉलेंट्री, जो कि आप अपने विल पे कंट्रोल करते हो, आप खुद अपने मन से करते हो, यू परफॉर्म देम कॉन्शियसली, पूरे होशो हवास में उनको परफॉर्म करते हो. और एक इनवॉलेंट्री होती है जो दे आर परफॉर्म अनकॉन्शियसली, दैट इज़ दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल. तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, यू विश टू वॉच सम प्रोग्राम ऑन टीवी एंड यू स्विच इट ऑन एंड प्रेस द रिमोट फॉर अ पर्टिकुलर चैनल. आपको कोई देखना है टीवी पे चैनल, तो पर्टिकुलरली आप अपना चूज़ करोगे, आपके इतने सारे चैनल्स में से आप चूज़ करके वही शो देखोगे जो आपको पसंद है. बट यू पिकअप एन एप्पल एंड ईट. अगर आपको खाना, भूख लग रही है आपको, तो आपको जो पसंद होगा वो आप उठा कर खाओगे, खुद खाओगे. देन यू नो द टाइम, यू रेज योर आर्म एंड लुक एट द वॉच ऑन योर रिस्ट लाइक दिस. अब इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, दे अकर अननोइंगली, हम नहीं करते कंट्रोल उनको. नाउ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन ऑटोमेटिक, क्विक एंड इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट बाय अ स्टिमुलस. तो कुछ चीज़ ऐसी होती है आपके इन्वायरमेंट में, कुछ ऐसा चेंज होता है जो आपकी बॉडी को ये करने पर मजबूर करता है, या आपकी बॉडी को ये करना पड़ता है एक तरह से. ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, एक क्विक डिसीजन है जो आपकी बॉडी करती है, और ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक खुद से हो रहा है, ठीक है. सम पार्टिकल फॉल्स इन योर आई एंड देर इज़ इमीडिएट फ्लशिंग ऑफ टीयर्स. आपकी आँख में मिट्टी चली जाती है, मतलब मानो, तो आपकी आपकी जो आई है वो फ्लिकर करने लग जाती है, टीयर्स भी निकलने लगते हैं टू वॉश आउट द पार्टिकल. ये एक रिफ्लेक्स चीज़ है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप टीयर्स को कंट्रोल नहीं करो, खुद निकल रहे हैं. इंस्टेंटेनियस विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन इट एक्सीडेंटली टचेज अ हॉट आयरन. आपने एक हॉट आयरन को टच कर लिया, तो इंस्टेंटली आप अपने हाथ को पीछे खींचोगे. दिस इज़ अ मस्कुलर मूवमेंट एंड इट इज़ इंस्टेंट. आप बहुत जल्दी करते हो, ऐसा तो नहीं कि आप हाँ भाई 1 मिनट वहीं पे रखा हुआ है, अच्छा गर्म है, ठीक है, फिर बाद में लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता. इट्स ऑटोमेटिक एंड इट्स क्विक. देन शिवरिंग व्हेन इट्स टू कोल्ड एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, आप शिवर करने लगते हो, धूजने लग जाते हो जब बहुत ठंड होती है, और जब बहुत गर्मी होती है जैसे आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप स्वेट करने लग जाते हो. तो ये when it's too cold and when you're shivering, it's a muscular contraction, and when it's too hot and you're sweating, it's a glandular secretion. Sweating is a secretion of the glands. Then dilation of the eye pupil to look in the dark and vice versa, it is a muscular movement. मतलब आपका eye का जो pupil है वो डायलेट हो जाता है, मतलब कि इट अलाउज मोर लाइट टू एंटर इनसाइड इट, सो दैट यू कैन लुक इन द डार्क, सो दैट यू कैन सो दैट इट अनेबल्स यू टू लुक इन द डार्क. बट जब आप एक वेल लिट एरिया के अंदर हो, जब डे टाइम हो रहा है, तो आपका प्यूपल क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, थोड़ा छोटा होता है इन साइज़, छोटा हो जाता है, ताकि वो लाइट जो इतनी ज़्यादा एंटर ना करे कि वो रेटिना को डामेज कर दे. तो दिस इज़ अ मस्कुलर मूवमेंट. ये भी इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. आप अपने प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो डायलेट करे या वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए. देन पुशिंग अलॉन्ग ऑफ द swallowed फूड थ्रू द फूड कैनाल. अगेन आपने मुंह में अपना खाना डाल दिया, देन इट्स बाउंड टू जस्ट बी swallowed और जस्ट गो थ्रू योर फूड पाइप एंड रीच द स्टमक. अगेन इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल. एक बार वो चला गया फूड पाइप के अंदर, तो आप उसको नहीं निकाल सकते, आप उसको बाहर नहीं ला सकते कि अरे नहीं अभी तो रुको, अभी तो नहीं जाना तुम्हें, ऐसे इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल. देन नॉन स्टॉप बीटिंग ऑफ द हार्ट. येस, आपका हार्ट आप जब से पैदा हुए हो तब से जो नॉन स्टॉप बीट करा है, आप उसको रोक नहीं सकते कि नहीं कि 1 मिनट चलो दिल अपना हार्ट करना, बीट करना रुक जाओ, ऐसे नहीं हो सकता. देन ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्सेस आर इनिशिएटेड बाय सम काइंड ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन रिजल्टिंग इन ईदर अ मस्कुलर एक्शन और अ ग्लैंडुलर सेक्रेशन.
नाउ डिफरेंसेस बिटवीन द रिफ्लेक्सेस एंड वॉलेंटरी एक्शंस. तो रिफ्लेक्सेस मतलब कि जो इनवॉलेंटरी एक्शन वॉलेंटरी एक्शंस के बीच के हम डिफरेंसेस देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज involuntary actions are initiated by some stimulus, मतलब some change in the environment like touch, pain, pressure, heat, light, etc. But voluntary actions are initiated by a willing thought. आप अपनी thought अपने will power से करो. Then reflexes में क्या है, मेनली सेल्फ प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं ड्यू टू दी चेंज इन एनवायरनमेंट. आपका सामने आपने कुछ बहुत गर्म चीज़ को टच कर लिया तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ दूर खींच रहे हो, राइट. तो इट्स सेल्फ प्रोटेक्टिव इन नेचर. एंड वॉलेंटरी एक्शंस आर टू फुलफिल अ डिज़ायर्ड गोल. आपको भूख लग रही है तो भूख को ख़त्म करने के लिए या अपना पेट भरने के लिए आपने खाना खाया. देन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इट कमांड्स, जो कमांड्स होते हैं दे ओरिजिनेट मोस्टली इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड अ फ्यू टाइम्स इन द ब्रेन ऑल्सो. बट वॉलेंटरी एक्शंस जो हैं दे ऑलवेज ओरिजिनेट इन द ब्रेन. दैन रिफ्लेक्स एक्शन जो आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं दे इन्वॉल्व मसल्स एंड ग्लैंड्स टू एक्ट, बट वॉलेंटरी एक्शंस ओनली इन्वॉल्व मसल्स. नाउ व्हाट इज़ अ स्टिमुलस. हम इतनी देर से बात करें स्टिमुलस की, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात करी थी, वापस सुनते हैं स्टिमुलस की क्या डेफिनेशन है. अ स्टिमुलस इज़ एनी एजेंट और एन एनवायरमेंटल चेंज विच इनिशिएट्स अ रिस्पॉन्स इन द बॉडी. A stimuli can be of several types. It can be physical, that can be mechanical, touch, prick, pressure, etc. It can be chemical, chemical, और it can be radiant. ज़्यादा लाइट आ रही है आँखों में, बहुत ब्राइट चीज़ देख ली तो आँखें बंद कर देते हो. लाइक सन को देखते हो तो आँखें इतनी खुलती नहीं, ज़ोर से बंद होती रहती है थोड़ी, है ना. देन थर्मल, हीट और कोल्ड और इलेक्ट्रिकल. तो ये सारी चीज़ें एक स्टिमुलस को जनरेट कर सकती हैं. नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस भी अभी टाइप के होते हैं. हमने यहाँ पे देखा कि हमारे नॉर्मल बॉडी एक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री. जो इनवॉलेंट्री होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं. अभी जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये भी दो टाइप के हैं. एक तो है नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस और एक है कंडीशन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस. तो नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस इज द वन विच इन विच नो प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्निंग इज रिक्वायर्ड. दीज रिफ्लेक्सेस आर इनबॉर्न, मतलब अपने आप जनरेट हो जाती है. आपने दिमाग में ये स्टोर करके नहीं रखा है कि अच्छा अगर ये हुआ तो मुझे ये करना है. नो, ये बॉडी खुद कर लेती है, इनबॉर्न है, ये अपने आप हो जाता है. दैट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. ये ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप पूरा बनाया आपके दिमाग में आया है कंडीशन. नहीं. सो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है, ब्लिंकिंग ऑफ दी आई. अगर आपके आँख में कुछ चला गया तो नेचुरली चीज़ क्या है कि आप ब्लिंक करोगे अपनी आई. टीयर्स भी निकल जाते हैं क्या, वॉश करने के लिए, टू वॉश ऑफ दैट germ or pathogen or sand particle, whatever. Then coughing, sneezing, these are all protective in nature. And salivation, swallowing and peristalsis, they provide functional efficiency. तो ये आपके क्या थे, नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो अपने आप हो रहे हैं. नाउ कंडीशन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स में क्या है, it is the one in which it develops during lifetime due to experience or learning. For example, what you experience simply at the sight or by smell of a familiar tasty food resulting in the watering or salivation of your mouth. मतलब आपने अपना फेवरेट खाना, अब होटल में गए आप, वहाँ दूर से आपको बटर चिकन की स्मेल आ रही है तो आपको बहुत पसंद है, राइट. आप बहुत यू आर वेरी फेमिलियर टू दिस स्मेल. तो आपके माउथ में ऑटोमेटिकली वाटरिंग शुरू हो जाएगी एक तरह से. then this means that if you have not eaten that food earlier, the response would not occur. अगर आपको मैंने कोई फ्रेंच चीज़ का टुकड़ा आप दूर से लेकर आ रही हूँ मैं, तो यू आर नॉट क्वाइट फेमिलियर, मतलब आप हो सकता है आपने खाई हो बट यू नॉट वेरी फेमिलियर. सो इन दैट केस दैट सच रिस्पॉन्स वुड नॉट अकर. ये जो आपका मुंह में जो वाटरिंग हो रही है दैट वुड नॉट अकर. देन सैलिवेशन कैन अकर एज अ natural reflex also. Saliva starts flowing down when you chew or eat food. But in the above example of salivation, the sight or the smell of food was enough for the response. आपका नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्स भी हो सकता है सैलिवेशन, आपकी वाटरिंग ऑफ माउथ हो सकती है, पर कब, जब आप खाना खा रहे हो, दैट इज़ नेचुरल. खाना खा रहे हो तो एक तरह से उसको मुंह को वेट रखने के लिए या टू ईजी स्वॉलोइंग के लिए वो वाटरिंग हो रही है आपके माउथ में. बट आप अभी कंडीशन रिफ्लेक्स या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स में आप जो एग्जांपल देख रहे हो उसके अंदर क्या है कि आप होटल में बैठे हो या आपको स्मेल आ रही है और आपने उस खाने को देखा, दैट वाज इनफ टू वाटर योर माउथ लाइक दैट. नाउ देयर
your brain actually remembered the taste of the food and worked in an unconscious way. Such conditioned reflexes are not inborn and they are thus called acquired reflexes. A conditioned reflex is an involuntary, spontaneous, automatic response brought about due to a प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंस. तो आपके पुराने एक्सपीरियंस से, आपने पुराने मतलब पहली बार अगर जब बटर चिकन खाया होगा तब से बस आपके हो गया है, इतना आपको अच्छा लगता है अब कि आप जब भी उसको देखते हो मुंह में पानी आ जाता है. दिस इज़ अ कंडीशन रिफ्लेक्स. एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर. ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कह रहे हो कि नहीं नहीं अब तो वाटर जनरेट करो, और सलाइवा जनरेट करो मुंह के अंदर, अब तो मैंने बटर चिकन देख लिया. नहीं, दिस इज़ कंडीशन बट दिस इज़ इनवॉलेंट्री. ना नेचुरल और इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस के क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नी जर्क, इन विच द लेग इज़ इनवॉलेंट्री एक्सटेंडेड as a result of sharp tap below the kneecap and in a relaxed legs rested on the other leg while sitting. Yeah, quick closing of the eyelids when an object suddenly approaches the eye or when a strong beam of light is flashed across. Then withdrawal of the hand or any part of the body when suddenly pricked. Then peristaltic reflexes, जब chime या food is propelled through the small intestine by peristaltic waves. When a portion of the intestine becomes distended by with chime, the stretching of the intestinal wall becomes a stimulus and its contraction pushing the food along is response. Then cuffing reflex क्या है, when the food is when the food that you've swallowed it enters the windpipe, तब आप cuff करते हो. Then sneezing, when any pathogen or any irritant enters the nose, तब आप sneeze करते हो. तो दीज आर ऑल नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो अपने आप हो रहे हैं, आपने याद करके नहीं बैठे इनको, या आपके पास इनका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, या अपने आप हो रहे हैं बेसिकली. एंड कंडीशन या अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस के अंदर आपको इनका पास्ट एक्सपीरियंस है, एक बार आपके साथ ये हुआ हुआ है, मतलब बटर चिकन आपने खाया हुआ है एक बार. तो सीइंग द टीचर एंड एंटरिंग द क्लासरूम यू स्टैंड अप. आप स्कूल में गए तो आपने देखा, अच्छा यू ऑलवेज हैव टू स्टैंड अप व्हेन द टीचर कम्स और व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लासरूम. तो यू स्टैंड अप, यू विश अ गुड मॉर्निंग व्हाटएवर. देन यू टाई योर शू लेसेस व्हाइल टॉकिंग एंड नॉट knowing whether you are first putting the right lace over the left or vice versa. मतलब आप बात करते करते भी शू लेस को टाई कर लेते हो, क्योंकि अब आप इतने यूज्ड हो गए उससे, आप हर दिन एक तरह से कर रहे हो ये काम, आप हर दिन अपनी शू लेसेस को टाई कर रहे हो, तो योर हैंड्स आर बेसिकली दे आर यूज टू दिस. देन प्लेइंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप पियानो बजा रहे हो, जब आपने पहली बार सीखा यू आर नॉट अकस्टम टू दिस, बट आपने जो पहली बार जो सॉन्ग सीख लिया, अब आप उसको चाहे आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया कि आप उसको आँख बंद करके भी बजा सकते हो. देन यूजिंग कीज ऑफ द कीबोर्ड वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, मतलब आप कंप्यूटर पे कंप्यूटर पे देख रहे हो, बिना कीबोर्ड पे देख कर भी आप टाइप कर सकते हो. देन गिविंग अ हैंड सिग्नल टू योर राइट ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर टर्निंग योर साइकिल or car to the right. Then applying brakes in your vehicle, car or bicycle, if someone suddenly comes in front. So now you can now let's have a difference table. Now let's look at the differences between natural or simple reflex and conditioned or acquired reflex. So natural reflex are inborn, they are inherited, requiring no previous experience. इसमें कोई previous experience की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है, ये आपने एक तरह से अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करा है. कंडीशन के अंदर क्या है, दे आर डेवलप्ड बाय योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लर्निंग. देन नेचुरल या सिंपल रिफ्लेक्स के अंदर यू डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टिमुलस, आपके सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ, दैट कॉज यू टू हैव दिस एज अ रिस्पॉन्स. और कंडीशन या अक्वायर्ड रिफ्लेक्स के अंदर देखो तो दे आर ब्रॉट अबाउट बाय कोऑर्डिनेशन, ब्रॉट अबाउट अ कंडीशन टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ डायरेक्ट इनिशियल स्टिमुलस. मतलब आपने गर्म खाने को अभी टच नहीं करा, बट आप दूर से देख रहे हो कि बहुत अच्छा खाना आ रहा है, इसकी स्मेल या उसकी साइट को देख कर ही मुँह में वाटरिंग शुरू हो रही है. तो दिस. देन नेचुरल रिफ्लेक्स के अंदर सिमिलर इन ऑल ह्यूमन्स, सारे ह्यूमन स्नीज करेंगे अगर उनके नाक में कोई पैथोजन या जर्म चला गया, मतलब सब के अंदर सिमिलर है सारे ह्यूमंस के अंदर. बट कंडीशन या अक्वायर्ड आपके लिए डिफरेंट हो सकता है. इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस. मतलब आप इंडिया के बंदे को बटर चिकन बड़ा पसंद है, बट क्या हो पता मतलब कहीं और किसी दूसरे कंट्री के इंसान को इतना अच्छा ना लगे, हो सकता है. तो ये डिफरेंट होता है, मतलब इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. अब ये एक रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है
तो यहाँ पे रिसेप्टर है आपका, जो कि आपका स्किन है, मतलब रिसेप्टर मतलब आपका जहाँ पर ये सेंसरी ऑर्गन, बेसिकली एक सेंस ऑर्गन, सॉरी, जहाँ से ये शुरू हो रहा है। तो आपकी स्किन पे कुछ या तो हॉट नीडल या मतलब कुछ भी एक चेंज इन सराउंडिंग ऐसी हुई, आपके स्किन में ऐसा हुआ, एक स्टिमुलस जनरेट हुआ। अब वो स्टिमुलस क्या होगा, रिसेप्टर यहाँ से कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन से। तो स्टिमुलस उसको सेंस कौन करेगा, स्किन में क्या है, स्किन क्या है, सेंसरी सेंस ऑर्गन है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है। अब सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज लेके जाएगा कहाँ पर, सेल बॉडी इन डोर्सल रूट गैंग्लिया। तो यहाँ पे लेकर जाएगा सेल बॉडी इन डोर्सल रूट गैंग्लिया। याद रखना, मैंने जैसे सिखाया था SD एंड MV, SD MV एक याद रख लो, दूसरा हो जाएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाता है, डोर्सल रूट में जाता है। तो ठीक है, यहाँ डोर्सल रूट में पहुंचा, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया से कहाँ गया ये, डोर्सल रूट में गया। अब डोर्सल रूट, अब यहाँ पे आ गए। अब ये क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है, बाहर अपना क्या प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर, अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर। तो आप ये देख सकते हो, ये वाइट मैटर है और ये ग्रे मैटर है। अब यहाँ पे पहुँच गया डोर्सल रूट, ठीक है, ये स्टिमुलस बेसिकली यहाँ पे पहुँच गया है। और बीच में ये क्या है, हमारा सेंट्रल कनाल है, और ये ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर है। अब यहाँ पे एसोसिएशन न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन था, यहाँ पे एसोसिएशन न्यूरॉन है, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है। तो एसोसिएशन न्यूरॉन के पास ये बात पहुँची और इसने कनेक्ट करा किसको, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को एक तरह से कनेक्ट करा। अब बात एसोसिएशन न्यूरॉन के पास पहुँची। अब यहाँ से कहाँ गई वेंट्रल रूट के अंदर। अब वेंट्रल रूट से कहाँ जाएगी, ये स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल नर्व क्यों, क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट्स, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, स्पाइनल कॉर्ड से उनके आंसर या रिस्पॉन्सेज जनरेट होता है, तो इसलिए स्पाइनल नर्व। एंड स्पाइनल नर्व क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन को बताएगी तुम्हें ये करना है, और मोटर न्यूरॉन जो भी हो सकता है, या मसल या ग्लैंड जो भी एक्ट करना है, सेक्रीट करना है अगर ग्लैंड को तो कुछ सेक्रीट करेगा, मसल को अगर एक्ट करना है तो मसल एक्ट करेगा, और इफेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मसल हो जाएगा। तो आप आपका ये पूरा पाथवे बनाने को आ सकता है। बेसिकली इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन है, ये ही डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से एक बार कर लेना। एंड यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये अच्छे से बनाना सिखाया है, हाउ टू ड्रॉ सिंपल रिफ्लेक्स। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो तो आ जाएगा आपके पास, तो उनके वीडियोज़ आप देख सकते हो, बना सकते हो उनके साथ साथ। नाउ नर्वस pathways and reflexes. तो रिफ्लेक्स एक्शन मस्ट बी क्विक टू हैव वैल्यू। अब आपने कुछ हॉट चीज़ को गलती से टच कर लिया, तो आप 1 मिनट अगर उसको टच ही करते रहे तो आपका हाथ जल जाएगा, राइट। तो क्या होता है, नर्वस जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, दे शुड बी क्विक। अगर 1 मिनट अगर रखना ही है वहाँ पे, तो क्या फ़ायदा हुआ ना, हाथ में तो लग गई। सो देयरफॉर द पाथवे फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शॉर्ट। मतलब जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है उतना वो इफेक्टिव रहेगा। सो इन अ सिंपल रिफ्लेक्स, impulses are not conducted up and down the spinal cord but leave at the same level at which they enter, and this may involve 2 neurons or 3 neurons. When it involves 2 neurons, these are dorsal sensory neuron located in the dorsal root and a ventral motor neuron located in the ventral part of the gray matter of the spinal cord with its fibers in the ventral root. The impulse from the sense receptor is received through the sensory afferent, meaning carrying towards. सेंसरी फाइबर्स उनको रिसीव करते हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन पे कुछ भी इफेक्ट हुआ तो सेंसरी फाइबर्स रिएक्ट करते हैं, देन दे ऑफ द डॉर्सल रूट एंड ऑफ द स्पाइनल नर्व, and it reaches, as it reaches the motor neuron in the spinal cord, a response impulse is immediately flashed like a reflection through the same spinal nerve to the effector muscle or organ to react. Sometimes a third neuron called intermediate or connecting or association neuron or relay neuron is included in the reflex arc, lying between the sensory fiber and the motor neuron inside the spinal cord as shown over here. Like मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे क्या करा है, सेंसरी फाइबर और मोटर न्यूरॉन को कौन कनेक्ट करा है, एसोसिएशन न्यूरॉन. Then after the instant response, the sensation is also carried to the brain via the interconnected longitudinal nerve fibers, ascending neurons in the spinal cord. कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स न्यूरॉन्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अभी हमने यहाँ पे सेम लेवल ऑफ द
स्पाइनल कॉर्ड की बात करी थी कि उनको बार बार अप डाउन नहीं जाना पड़ता, सेम लेवल पे काम हो जाता है एक जगह पर कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर डिफरेंट लेवल पे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. वाइल वॉकिंग in the dark on a road, if you happen to step on a coiled piece of rope, when you suddenly jump aside with with the fear of suspected snake, तो आप रोड के अंदर चल रहे हो, कोई अच्छी लाइटें नहीं लगी हुई है, आपने एक रोप के ऊपर पैर रख दिया और आपको लग रहा है कि वो तो सांप है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है. तो वर्चुअली ऑल द स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिफ्लेक्स, सारी मसल्स. पाथ ऑफ रिफ्लेक्स आर्क पूछा जा सकता है आपको, नंबर करने को आ सकता है कि नंबर द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क. तो सबसे पहले एक स्टिमुलस जनरेट होता है, एक आपके सराउंडिंग में कोई चेंज होता है जो हम स्टिमुलस बोलेंगे उसको. अब वो स्टिमुलस कहाँ जाएगा? रिसेप्टर पे. अब रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा. रिसेप्टर कौन है? सेंस ऑर्गन. और वो सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन अब क्या करेगा? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा. ठीक है, अब उस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन है वो इफेक्टर के पास जाएगा, मसल और ग्लैंड, और वहाँ से रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट हो जाएगा. नाउ रिफ्लेक्स आर्क इज द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाय एन इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू एन इफेक्टर. रिसेप्टर कौन है? द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द टर्मिनल एंडिंग्स ऑफ द नर्व सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड कन्वर्टेड टू एन इम्पल्स इन अ सेंसरी न्यूरॉन. ये रिसेप्टर की डेफिनेशन. देन सेंसरी न्यूरॉन क्या है हमारा? द न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड that receives nerve impulses through its axon or terminal endings which are in contact with the receptor cell. CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, वो क्या है? इट इज़ अ रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वेयर इनकमिंग सेंसरी इम्पल्स जनरेट्स एन आउटगोइंग मोटर इम्पल्स. तो अंदर आ रही है कि क्या हुआ ये बता रहे, और क्या करना है अब वो जा रहा है थ्रू मोटर इम्पल्स. देन इन द सेंटर देयर मे बी एन एसोसिएशन न्यूरॉन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या है? इट कैरीज इम्पल्स जनरेटेड बाय द एसोसिएशन न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, दैट इज द ऑर्गन और मसल और ग्लैंड. देन इफेक्टर क्या है? इट इज एन ऑर्गन, मसल और ग्लैंड दैट रिस्पॉन्ड्स टू द मोटर नर्व इम्पल्स. Now remember that all reflexes are involuntary. That is they're not under our control, or they're not of our will. But all involuntary actions are not reflexes. तो सारे इनवॉलेंट्री एक्सेस रिफ्लेक्स नहीं होते हैं. सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, बट सारे इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस नहीं होते. आपकी बॉडी के अंदर अभी डाइजेशन चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही है आपकी बॉडी के अंदर, आपको नहीं पता पर फिर भी वो हो रही है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, पर ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है. इट इज़ इनवॉलेंट्री बट इट्स नॉट रिफ्लेक्स. बट सारे रिफ्लेक्स एक्शन जाकि मतलब आपका आई का ब्लिंक करना, अगर कोई साउंड पार्टिकल चला गया, तो ये रिफ्लेक्स है और ये इनवॉलेंट्री भी है. ना सर्टेन वॉलेंट्री actions by consciously repeating them with specific stimuli can become involuntary, and such actions are called conditioned reflex. तो ये आप देख सकते हो वापस conditioned reflex की क्या definition है कि certain voluntary actions मतलब that are performed by your will by consciously repeating them with specific stimuli can become involuntary, and इन्हीं actions को हम क्या बोलते हैं? Conditioned reflexes. So here we have completed the nervous system in one shot for your semester 2 examinations, and all the best for your exam tomorrow.